Hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss a case of surgery, and this is our first case that we are going to discuss apart from the format. Before this, I have posted two videos, one on the simple format and another one on tricks of national immunization schedule. Let us start. Rohit Gupta, a 26-year-old male, resident of Mirzapur, Hindu, currently a diploma student belonging to lower socio-economic class by modified BG Prasad, came to, you will have to say the hospital name. Suppose you study in XYZ college, then say BG Prasad came to XYZ OPD or emergency with chief complaint of. So what did we do here? We basically we said the name of the patient and we specified the age, the gender, the place where he is coming from, the religion, what is his current occupation, then which socioeconomic class he belongs to. Then we specified the scale which we used to specify the socioeconomic class. Then we specified the hospital name, and then we started with the chief complaints. So this is the part which confuses most of the people, and this is the part that you need to start your history with this. So what it means is that you need to be really careful about this part. आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि अगर आपने इतने पार्ट में ही मिस्टेक की देन nobody is going to listen more. Moving on, with chief complaints of pain in abdomen for 2 days, vomiting for 2 days. Remember, for, not since, not when, not of, for. Next we come to history of present illness. Rohit Gupta was apparently well 2 days back when he developed. So we need to specify that when was the time when the person was alright. Like there has to be some point ना जब उसको problem start हुई है, and कभी तो वो ठीक था, so you need to specify that. Then we specify both our chief complaints. We specify them and we elaborate them. Pain in abdomen for 2 days in upper abdomen. This is the location. Sudden in onset, excruciating, agonizing, and continuous in nature. The pain was initially present in the epigastric region, later radiated to the whole abdomen, also to the back. So what did we do here? We specified the site, the onset, the type of pain, the nature of pain, and then we specified the region, the exact region. Okay. And this is in the patient's language. This is obviously not the language जिसमें वो patient बता पाएगा. So this is basically you described it. It was aggravated by sitting, lying and supine. Lying supine. So basically aggravating factors, relieving factors और associated किससे किससे हमें ये बताना है. Aggravate बैठने पे हो रहा है और लेटने पे हो रहा है, और लेटने पे भी कौन सी पोजीशन पे हो रहा है, सुपाइन पोजीशन पे हो रहा है. रिलीव किससे हो रहा है, राइट लेटरल पोजीशन पे वो रिलीव हो रहा है, और मेडिकेशन देने पे भी रिलीव हो जा रहा है. इट वॉज एसोसिएटेड विद ब्लोटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, नोजिया, वॉमिटिंग. देर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ फीवर, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस. ये सब बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि देर आर कंडीशंस जिनमें which rule out, like which get rule out. जब हम बताते जाते हैं then it automatically gets ruled out. अब मान लो कोई कंडीशन है जिसमें फीवर आता तो ऑब्वियसली वो दूसरी प्रॉब्लम हो जाती. नाउ दिस इज आर
Second chief complaint, vomiting for 2 days. He had more than 10 episodes per day, number of episodes. Okay. Onset, sudden in onset. Projectile, non-projectile, projectile. Moderate in amount we need to specify. It can also be specified by specifying the number of spoons or the number of cups. Basically यू नीड टू आस्क द अमाउंट. तो आपको पूछना पड़ेगा कि कितना स्पून के हिसाब से आप बता सकते हो, आप कप के हिसाब से बता सकते हो कितना हुआ है. Bilious and contained undigested food particles. It was foul smelling and associated with nausea and was followed by abdominal pain. No history of blood in vomitus. Number of episode, onset, projectile है नहीं है, अमाउंट कितना है, बिलियस है. बिलियस अच्छे से पूछना होता है कि क्योंकि बिलियस होने पे सीरियस हो जा रही है ना कंडीशन, तो पूछना होता है वहाँ पे प्रॉपरली. और वो कंटेन करता है अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल की नहीं. स्मेल इम्पॉर्टेंट है. और हम लोगों ने ब्लड इन वॉमिटस की भी हिस्ट्री पूछनी है क्योंकि ब्लड इज़ अगेन अ सीरियस थिंग. एग्रीवेट किससे हो रहा है? फूड इनटेक, खाना खाने पे बढ़ जा रहा है. रिलीव किससे हो रहा है? मेडिकेशन से हो रहा है. टेम्पोररीली रिलीव हो रहा है. पेशेंट वॉज इनिशियली एडमिटेड इन हॉस्पिटल. सपोज ऐसा है कि ये केस क्या है कि जो पेशेंट है हमारा वो पहले किसी और हॉस्पिटल गया था, ठीक है, अब वो यहाँ आया है. तो हमें इसे कब बताना है? हमें इसको चीफ कंप्लेंट के बाद बताना है. पेशेंट इनिशियली किसी और हॉस्पिटल में था जहाँ पे उसकी प्रॉब्लम रिलीव हो गई थी मेडिकेशन से, आईवी फ्लूइड से. अब उसको दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया है आप फर्दर मैनेजमेंट के लिए. तो बेसिकली हॉस्पिटल 2 वो हॉस्पिटल है, XYZ हॉस्पिटल है ये, जहाँ पे आप पढ़ते हैं, जहाँ पे हिस्ट्री ली जा रही है. पास्ट हिस्ट्री. देयर वॉज हिस्ट्री ऑफ सिमिलर एपिसोड 1 ईयर बैक जो कि रिजॉल्व हो गया था 2 महीने पे. There is no history of diabetes mellitus, of hypertension, of TB, trauma, asthma, gallstones, hyperlipidemia, liver disease. लेकिन बात ये है कि this you need to be more specific. Like this, ये जो है ना, ये आप कभी भी पूछ सकते हो, लेकिन इसमें आप स्पेसिफिक हो रहे हो तो एग्जामिनर इसमें पूछ सकता है कि क्यों स्पेसिफिक हो रहे हो, कौन सी दिक्कत दिमाग में है आपके पेशेंट के लिए. लाइक कौन सी दिक्कत आपको लग रही है कि उसको है. सो यू नीड टू बी रेडी अबाउट दिस. मतलब इफ़ यू फील लाइक इट इज़ गोइंग टू मेक थिंग्स ट्रिकी फॉर यू, डू नॉट mention this. If you feel like it is not going to make things difficult for you, then say this, and like you need to perceive the mood of the examiner at that time. Now personal history. Patient is vegetarian. एपेटाइट कैसा है उसका? रिड्यूस हो गया है. बॉवल एंड ब्लैडर हैबिट हम लोग बोलते हैं जो कि डिक्रीज़ है. यूरिन आउटपुट कम है और थर्स्ट इंक्रीज़ है. स्लीप जो है उसका डिस्टर्ब्ड है, पेन की वजह से है डिस्टर्ब्ड. नो हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग और अल्कोहल एडिक्शन. मतलब हमने उसका वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है ये पता किया. एपेटाइट कैसा है, बॉवल एंड ब्लैडर कैसा है, यूरिन आउटपुट कैसा है, थर्स्ट कैसी है, स्लीप कैसी है, स्मोक करता है कि नहीं, अल्कोहल एडिक्शन है कि नहीं. अब नो सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री. अगर फैमिली हिस्ट्री सिग्निफिकेंट होती तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करते. पेशेंट बिलोंग्स टू लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड BG प्रसाद स्केल. और ये आपको वहाँ पे निकालना पड़ेगा. इसके लिए आपको नंबर ऑफ़ मेंबर्स और उनकी आपको स्पेसिफिकली पूछना पड़ेगा उनसे कि फैमिली में लोग कितने हैं. ये आपको आता है. रिमेंबर दिस इज़ समथिंग दैट यू नो दिस बिकॉज यू लर्न दिस इन योर 3rd year. So yeah, thank you. But there are some things that we need to discuss. अब हमने केस किसका डिस्कस किया, जितने लोग समझ पाए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि ये जो केस है ये अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का है. ओके, बट अब यू डू नॉट से लाइक दिस. द एग्जामिनर विल आस्क द डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड दिस इज़ समथिंग जिसमें सब लोग फंसते हैं. So you need to understand this. You will not say just acute pancreatitis. You will, name few more diseases.
अक्यूट पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिसीज़ हो सकती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, अक्यूट एमआई हो सकता है, मीजेंट्रिक इस्चीमिया हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। एंड हमने ये पता कैसे किया? हमने ये हिस्ट्री से ही पता किया है। इनफैक्ट हमने कार्डियक कॉजेज़ भी रूल आउट किए हैं ऊपर। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इसमें एक और सवाल बन सकता है कि सडन पेन का डीडी क्या है? तो सडन पेन का डीडी पेप्टिक अल्सर डिसीज़ है। अब इसके बाद एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप अक्यूट पैनक्रेटाइटिस का केस लेके जाओगे वहाँ पे, तो वो आपसे पूछ सकता है कि अगर बिलियस अपर एब्डोमिनल पेन है तो फिर क्या डीडी होगी, नॉन बिलियस अपर एब्डोमिनल पेन का डीडी क्या है? कॉमेंट डाउन दिस इन द कमेंट सेक्शन ऑब्वियसली, एंड अगर नहीं समझ में आता है आई विल mention it. Thank you for watching, and do not forget to subscribe to my channel. Do not forget to subscribe. Thank you so much for watching.